खाकर एक बार फटकार खाकर सुधर जाए उसे आप समझदार कहते हैं, और 100 बार लताड़ और बेइज्जत होने के बाद जो ना सुधरे उसे पाकिस्तान कहते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की सीरियल बेइज्जती हो रही है। अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि उसका भरोसा पाकिस्तान से पूरी तरह से उठ चुका है, और अब यूरोपियन यूनियन और रूस ने भी पाकिस्तान को जोरदार कूटनीतिक तमाचा मारा है। The situation regarding human rights in Pakistan is very difficult. Anyone going about their business can be accused of blasphemy. यूरोपियन यूनियन का एक करारा तमाचा पाकिस्तान के लिए है। The actual situation in Pakistan is not acceptable. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को ये तमाचा उसकी नापाक हरकतों के लिए है। Those who belong to vulnerable groups like the Ahmadis live their lives in fear with no democratic rights, yet the government fails to protect them. पाकिस्तान को ये थप्पड़ जनरल बाजवा की बर्बर सेना के लिए है। Finally, I believe the Pakistan authorities should grant access to international observers and human rights organizations to monitor the inappropriate use of military courts. लेकिन पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी सिर्फ इतने ही नहीं। यूरोपियन यूनियन के अलावा रूस, अमेरिका और चीन ने भी पाकिस्तान को सरेआम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झन्नाटेदार कूटनीतिक तमाचे मारे हैं। लेकिन पहले देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने कैसे बेइज्जत किया। People who work for NGOs face harassment, arrest, or worse, death. How many people are on death row under the vague blasphemy laws? We do not know because there is no transparency. Anyone going about their business can be accused of blasphemy. Those who belong to vulnerable groups like the Ahmadis live their lives in fear with no democratic rights, yet the government fails to protect them. यूरोपियन संसद ने अपने प्रस्ताव में सबसे गहरी चिंता जताई है पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों पर। यूरोपीय संसद ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक डर के साए में जीने को मजबूर है। वहां किसी को भी ईश निंदा कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। The situation regarding human rights in Pakistan is very difficult. Several minority people were killed, persecuted, because without being protected by the government. One issue I want to highlight in particular, the so-called blasphemy laws. I want to ask the High Commissioner to urge the government of Pakistan to review these laws, or even better, to abolish them. यूरोपियन संसद ने कुलभूषण जाधव का नाम लिए बिना पाकिस्तान की सेना पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पाकिस्तान आर्मी जिस मनमाने ढंग से फैसले सुनाती है वो बेहद चिंताजनक है। The actual situation in Pakistan is not acceptable. The death penalty is a cruel and inhumane punishment that fails to act. I strongly support the call for the universal abolition of capital punishment and on Pakistan to reinstate a moratorium for the full abolition of the death penalty. Pakistan authorities should grant access to international observers and human rights organizations to monitor the inappropriate use of military courts. यूरोपीय संसद ने कहा कि पाकिस्तान में मानव अधिकार की हालत बेहद गंभीर है। वहां आरोपियों को बचाव का मौका नहीं मिलता। उन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन के अलावा पाकिस्तान पर अगला तमाचा जड़ा अमेरिका ने। अमेरिकी सेनेटर बॉब कार्कर ने नवाज शरीफ के उस झूठ को बेपर्दा कर दिया जो उन्होंने 9 जून को दुनिया के सामने कजाकिस्तान के अस्ताना में बोला था। Mr. President, we fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. Pakistan has fought its own fierce war against international terrorism and violent extremism, and with the grace of God, we have been able to turn around the security and economic situation in our country. नवाज के इस झूठ की बखियां उधेड़ते हुए अमेरिका की विदेश संबंध समिति के चेयरमैन बॉब कार्कर ने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हक्कानी नेटवर्क से संबंध है और पाकिस्तानी सरकार चाहे तो इसे खत्म कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को आतंक से लड़ाई के नाम पर धोखा दे रहा है।
और इसीलिए अमेरिका को पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा रूस ने भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का झूठ उजागर किया और उसे कड़ा संदेश दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने कभी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात नहीं की। पाकिस्तान ने दावा किया था कि रूस कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की तैयारी में है, जिस पर रूस ने कहा है कि वह ऐसी गलत बातों को न फैलाए। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी उसे तगड़ा झटका दिया है। चीन ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। मतलब साफ है कि चीन को लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाकर एससीओ का माहौल खराब कर सकता है, यानी पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन में कश्मीर मुद्दा नहीं उठा पाएगा। चीन की तरफ पाकिस्तान के करीबी सऊदी अरब का भी उससे भरोसा उठ चुका है। कतर और सऊदी अरब की लड़ाई में पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने नवाज शरीफ से पूछा है कि पाकिस्तान सऊदी के साथ है या फिर कतर के। सऊदी अरब में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेइज्जती हो चुकी है, जब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उनसे मिले तक नहीं। कोई और देश होता तो इतनी लताड़, इतनी बेइज्जती के बाद शर्म से डूब जाता, लेकिन जो तमाम बेइज्जती के बाद भी बाज ना आए, उसे ही तो पाकिस्तान कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।